Good morning, everyone. Families Alliance on Mental Illness Face Me India welcomes you to this special series with Thursday Musings. It's a collaboration and it's our first series today. Uh, Face Me India, as you know, has been founded by Dr. Nirmala Srinivasan. It's a national advocacy collective dedicated to the rights, dignity, safety, security, and overall well being of persons with mental illness and their families. We are connected through a vibrant WhatsApp group and united by a shared mission to support our loved ones. Face Me engages with both central and state government as well as key stakeholders to advocate for better policies, services for our loved ones. Our members receive expert guidance, updates on laws and regulations, and practical support through monthly webinars and our active discussion groups. Rooted in family values, we follow an inclusive approach where we refer to caregivers as family carers and persons with mental illness as our loved ones. The ethos of inclusive family is central to our identity. We currently operate through 4 vibrant regional zones: Maitri Bangalore, Shanti Delhi, Shakti Kolkata, and FAVME Mumbai. On behalf of Face Me and Dr. Nirmala Srinivasan, it gives us immense pleasure to welcome Dr. Aleem Siddiqui to present with us the first lecture in the series of Mental Wellness Musings. This collaboration marks Face Me's efforts to promote medical advocacy as an integral part of our commitment to the cause of mental illness. And our topic today is myths around psychiatric medicine. And we are honored to introduce Dr. Aleem Siddiqui, a distinguished psychiatrist with over 20 years of experience in the field of mental health. Dr. Siddiqui currently serves as a professor and head of the Department of Psychiatry at ERA's Lucknow Medical College and Hospital in Lucknow, and is also the director of Healthy Minds Neuropsychiatry and Behavioral Sciences Center, Lucknow. Dr. Siddiqui completed his MBBS from GSVM Medical College, Kanpur, followed by his MD and DPM and senior residency at the prestigious Central Institute of Psychiatry, Ranchi. His work reflects deep clinical expertise combined with an enduring commitment to mental health awareness and education. Dr. Siddiqui, as we all know, is the founder of the world record-holding Thursday Musings, a masterclass webinar series, an initiative that has reached thousands of learners and practitioners across India. He has delivered numerous faculty lectures, conferences, presentations, and media interactions, and has contributed significantly to publications with over 30 scientific papers. Besides his professional achievements, Dr. Siddiqui is known to be a passionate sports enthusiast. Oh, I love that. We are privileged to have Dr. Siddiqui join us today, and we really look forward to learning from his rich expertise, insights, and decades of service to the field of mental health. Before we hand it over to Dr. Siddiqui, I'll just request Dr. Nirmala Srinivasan to welcome Dr. Siddiqui. Over to you, Nirmala, ma'am. Thank you, Saraswati, and thank you for that lovely introduction to the main resource person today. Namaskar, Dr. Siddiqui. We are honored to have you today to launch this program. On behalf of you, Dr. Siddiqui, to this present first lecture series on mental health musings. Mental health musing is a title given by Dr. Siddiqui, and we are very happy and we are very thrilled to have those titles also for this series of lectures. This collaboration with Thursday Musings, founded by Dr. Siddiqui, marks Face Me's efforts to promote medical advocacy as an integral part of our commitment to the cause of mental illness. With this introduction, I don't want to come between you, Dr. Siddiqui, and the participants, the members and others. So over to you, Saraswati.
Thank you so much. Over to you. Please take over. Thank you. Dr. Siddiqui, all over to you, sir. You can take it forward. Thank you. Thank you, Saraswati ji. Thank you so much. My regards to Nirmala ma'am. When we talked, she was so passionate about holding a seminar, holding a discussion that there was no point, there was no avenue of refusal there. So she roped us in with her enthusiasm and her charm, I'll say. Is it a compliment or what? Okay. So thank you so much everyone for joining. So I'm working in Lucknow right now. So this is the first series, first lecture of the series. I think we can use mixed language or English is okay. Whichever is convenient to you, mixed language is fine. Okay, okay. So basically, this is the first lecture, so we are also sorting things out. So if there are any gaps, we'll try to cover it later on. So what I plan to do is have a brief presentation. The main portion would be the discussion. So I'll expect all of you to raise questions around the topic so that we can discuss and we can dispel some myths. If you allow, I'll start the screen share now. I hope my screen is visible now. Yes, sir, it's visible. Yes. So I'll be talking a bit about importance of psychiatric medications. Now, if we talk about remedy to myths, so there was an acronym that I found on the net, that is FAST. So dispel a myth, we have to have facts that are correct. We have to acknowledge the person who is holding the wrong side of fact. इसको थोड़ा confusion है. We have to acknowledge that. Then in simple language, we have to express ourselves. We have to tell the details and tie it to a real life example. So what we'll be trying to do is fast. We will be fasting for an hour from now. Now, before we delve in deeper, for psychiatric illnesses, there are actually two sort of major chunk of illnesses. One is communicable diseases, the COVID, the tuberculosis, the common cold that you have. So those are communicable diseases. जिसमें एक कीटाणु है that infection spreads from one person to other because of a vector, because of an organism. Now the second major chunk is NCDs, those are non-communicable diseases, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं. So all the mental health illnesses come in non-communicable diseases. These are long-term medical conditions which are not infective and which gradually persist and extend and may last through lifetime. So these are NCDs we are talking about. Now there are various groups, major groups of NCDs. Mental health disorders we'll be talking about. लेकिन आपने जरूर सुना होगा कि हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक इलनेस है, डायबिटीज इज अ लॉन्ग टर्म इलनेस, लाइफ लॉन्ग, chronic respiratory diseases are there, cancers are there. So all these are NCDs. Amongst this NCDs group is mental health disorder. Now once you get this thing correct, जो दवा के बारे में confusion होता है, that becomes आसान to take care of. Now mental health disorders में the important thing is chronic and recurrent nature. Depression, anxiety, bipolar often persist through life. Sometimes they recover and then recur. Biological and lifestyle linkages are there. So mental health illnesses are influenced by genetic factors. So even before a person is born, some things are written. So in your family tree, if there is excess of presence of certain illnesses, उसका likelihood ज़्यादा है. So this genetic dose of illnesses that is there in the family, that is one very important factor, and that is a non-modifiable factors. We cannot change our parents or family line. So that is there. Then there are environmental stressors, so triggering factors जो illness को precipitate कर देते हैं. Then lifestyle behaviors, यहाँ पर हम modifiable factors में आ रहे हैं. So we can modify this, और इसके बाद इसके जरिए हम अपनी general health प्लस मेंटल हेल्थ को हम इंप्रूव कर सकते हैं. लाइकलीहुड ऑफ क्राइसिस, डिकम्पनसेशन और इलनेस रिलैप्स इज कंट्रोल्ड बाय दिस. So having a mental illness and significant disability burden is there, and long-term care requirement is often there. So
अगेन एनसीडीज के बारे में आप ये चीज जानो कि ऑल द एनसीडीज आर एक्चुअली कनेक्टेड, डायरेक्टली नहीं होगा बट इनडायरेक्टली। सो जो अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। सीएनएस में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन अगर है, सो वो जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न्स था, जो हमारी जो ब्रेन की सर्किट्स अच्छे से काम कर रही थी, वो आपस में गड़बड़ कर रहे हैं और उसके कारण हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है। नाउ दिस बिहेवियर चेंज इज बीइंग इंटरप्रेटेड एज एन इलनेस, इलनेस बिहेवियर जिसको हम बोल रहे हैं। तो ऑल दीज एनसीडीज आर लिंक्ड। सो आपने जरूर देखा होगा कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर या डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा है। वंस वी स्टार्ट लो ग्रेड ऑफ एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, उनका बीपी और शुगर कंट्रोल में आ जाता है। स्ट्रोक के पेशेंट हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, अगर डिप्रेस्ड हैं तो ऑलरेडी वो रिहैब में नहीं जाएंगे, थेरेपी में नहीं जाएंगे, तो और रिकवरी कम हो रही है। सो ऑल द एनसीडीज आर लिंक्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो अगर आप अपने ब्रेन का ध्यान दे रहे हैं, दैट मीन्स यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट, ऑफ योर किडनी, ऑफ योर डायबिटीज, ऑफ एवरीथिंग। तो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो हार्ट हेल्दी है वही ब्रेन हेल्दी है, वही किडनी हेल्दी है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। ट्रीटमेंट एडहेरेंस होने से लॉन्ग टर्म आउटकम्स आर इम्प्रूव्ड एंड रिस्क फैक्टर्स आर देन कवर्ड। So why should you treat mental health illnesses? To improve health outcomes, to reduce the burden of illness, to prevent future complication, and for treatment success in that field and in related NCDs also. So it is not an optional thing, it is an essential thing. If there is a mental illness, it has to be treated for your brain and your body to be healthy. Now, why medications matter? The medications that we are having is uh, evidence-based care. Rigorous research has been there. सैकड़ों सैकड़ों लोगों पर रिसर्च होती है. We compare medication with inert agents. Then, after a comprehensive long-term scientific checking, these medications are allowed to be used. उसका guidelines बनता है and then they are used. So these are not just my whims and fancy. मैं अपनी मर्जी से दवा नहीं लिख रहा हूँ. Whatever I am writing to my patient, there is a background huge medical literature that is there. उसको this is my duty to be upgraded, updated, और उसके साथ हम पेशेंट का इलाज करते हैं based on certain guidelines. So dispelling myths here is very important. Medications are not quick fix. They will not create dependency. The reality is far more nuanced. Medications are very precise tools that work alongside therapy, lifestyle changes, social support systems. So all these things have to be taken care of. So in fact, अभी पेशेंट सेंटर्ड या पेशेंट टेलर्ड या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोच का भी कॉन्सेप्ट है. दैट मीन्स अब जैसे किसी भी एक पर्सन का प्रिस्क्रिप्शन दूसरे पर्सन से 100% मैच कभी नहीं करेगा. आई सीन मे बी थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट, बस सबका अलग अलग इलाज होता है बिकॉज द ट्रीटमेंट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड. whenever we are seeing a patient with person with mental illness, उसको हमें पूरा एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग देखना चाहिए कि उसके पास ब्रेन की इलनेस तो है, साथ में उसके बॉडी ऑर्गन्स उसमें भी इलनेस है, साथ में वो एक समाज का हिस्सा भी है, साथ में उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी भी है. तो ये सारी चीजों को हम उसकी काम को, उसके जॉब को, सोशल प्रोफाइल को, सब चीज को जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन सॉर्ट ऑफ प्रिसीजन मेडिसिन जैसा एक चीज डेवलप होती है. सो सारे एंगल्स को अकोमोडेट करते हैं. जो ये करता है वो बेहतर डॉक्टर होगा. सिर्फ दवा लिखना काम नहीं है हमारा. अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटल इलनेसेस आर मेडिकल इलनेसेस. ये बड़ा जरूरी है जानना. बहुत से लोग बोलते हैं ना कि ये तुमने सोच लिया, आप तुम सोचा सही कर लो तो ठीक हो जाएगा, आपको परेशानी क्यों है, घर में तो सब कुछ ठीक चल रहा है. नाउ दीज आर ब्रेन बेस्ड कंडीशंस. Psychiatric disorders originate when the brain's complex neural networks, इसमें जब डिसऑर्डर हो रहा है. तो पहले क्या था कि हमारे पास सीटी एमआरआई वाज द बेसिक इन्वेस्टिगेशन और उसमें कुछ साइकेट्रिक इलनेस ज्यादा आता नहीं था. तो ये बोला था कि फंक्शनल है. फंक्शनल मीन्स कि इसमें कुछ अंदर प्रॉब्लम नहीं है, सोच कुछ गड़बड़ हो गई इसलिए ऐसा हो गया. दिस इज नॉट. नाउ ब्रेन बेस्ड इलनेस है. ब्रेन में जो फंक्शनिंग है वो माइक्रो लेवल पे डिस्टर्ब हो रही है. Because of that, behavior is changing. Because of that, symptoms of
illness is there. So brain based neural networks इसमें dysfunction हो रहा है. These are arising from interaction between genetic predisposition, जो मैंने बात करी थी, family tree आपका कैसा है, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस, यानी करंटली हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनवायरनमेंट ब्रेन का है, वो कैसे वो स्टेबलाइज्ड है कि डिस्टेबलाइज्ड है. देन उस पे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स. तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर मतलब अगर जॉब लॉस होता है तो ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर में आता है. देन any changes in the surrounding that are very traumatic to the person, chronic stress is there. So all these things, suppose हम उसमें सब्सटेंस जोड़ लेते हैं, कैनबिस, अल्कोहल, टोबैको, ये सारी चीजें, तो ऑल दीज थिंग कॉम्प्लिकेट मेंटल इलनेसेस, दे प्रोग्नोसिस को खराब करते हैं. तो ये ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी अवॉइडेड. देन टारगेटेड इंटरवेंशन एज आई जस्ट टोल्ड. तो मेडिकेशन देने से there is depression relief, there is anxiety management, there is psychosis control, there is mood stabilization. So all these things will lead to better functional outcome. मेंटल इलनेस को हमने कंट्रोल किया, ब्रेन को हमने स्टेबलाइज कर दिया, तो ये सारी चीजें प्लस बहुत सारी चीजें, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट वेरी in a simplified way. So this all these things are controlled. Because of that, you build on being a better person, being a better part of the family, better part of society, more productive, less disability is there. So sleep normalization is there, energy restoration is there, cognitive clarity, social reconnection, all these things are there. So ये कैसे हो रहा है? हम दवा देना उसका एक अहम हिस्सा है, एक important part. So emotional relief is there, motivation is there, enhanced productivity is there. और तो एक बड़ा important क्वेश्चन आता है कि हम दवा क्यों खाएं? अब ये तो तबीयत ठीक हो गई है, तो दवा कितने दिन खानी है? Now this slide answers that. When as a doctor we look at a illness, we look in phases. दवा पेशेंट कैसे देखता है कि अभी मैं ठीक हूं और अभी मैं गड़बड़ हूं, तो ये बाइनरी नहीं होता है. एज पर मेडिकल साइंस फेजेस में इलाज होता है. तो फर्स्ट फेज इज अक्यूट फेज ट्रीटमेंट. अक्यूट फेज का माने पर्सन हमारे पास डिप्रेशन, साइकोसिस, बाइपोलर या कोई भी इलनेस लेके आया, या उसका बीपी बढ़ा हुआ है, फॉर फिजिशियन के पास गया, तो अक्यूट फेज मींस कि उसका इलनेस की जो सिवियरिटी थी वो कंट्रोल में आ गई और तकरीबन अब ठीक दिखने लगा. तो दैट इज जस्ट फर्स्ट फेज, कि जहां से अब मेरी इलनेस कंट्रोल में आ चुकी है सिम्टोमेटिकली और मेरी फंक्शनिंग सुधर चुकी है. तो इलनेस की सिवियरिटी बहुत डाउन हो गई, नॉर्मल बेसलाइन पर आ गए हैं. तो पेशेंट क्या करते हैं, यहीं पर दवा बंद कर देते हैं. द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट एबल टू सी द लेटर ऑन फेजेस, द कंटिन्यूएशन फेज, द मेंटेनेंस फेज. तो इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका है. सपोज 2-4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते में अक्यूट ट्रीटमेंट पूरा हो गया और डिप्रेशन कंट्रोल में आ गया. अब आगे दवा चलनी है कि नहीं चलनी है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा, वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एपिसोड लेंथ. यानी कि जो आपको साइकोसिस का अटैक हुआ है, जो बाइपोलर का इश्यू आ रहा है, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो है, वो अगर हम कुछ इलाज नहीं करते नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो कितने दिन चलती? वो 2 महीना चलती, वो 6 महीने चलती, वो 6 साल चलती, वो जिंदगी भर चलती. इसके कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करते हैं? हम पर्सन की प्रोफाइल देखते हैं, इलनेस की प्रोफाइल देखते हैं, हम आपकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, अदर कोमॉर्बिडिटीज देखते हैं कि सब्सटेंस उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, पर्सनैलिटी इश्यूज है कि नहीं, आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है, जो इलनेस आती है उसकी सीवियरिटी कितनी है, थोड़ी सीवियर होती है या बहुत सीवियर हो जाती है. डिपेंडिंग ऑन दैट, कंटिन्यूएशन एंड मेंटेनेंस फेज. तो कंटिन्यूएशन में यूजुअली फ्यू मंथ्स रहता है. तो एक्सपेक्टेड एपिसोड लेंथ, तो इतना तो चलना ही चलना चाहिए. अक्यूट प्लस कंटिन्यूएशन, 1+2 इज डेफिनेटली देयर फॉर एवरीवन. नाउ 3 and 4 इज देयर. 3 मेंटेनेंस थेरेपी तब देखते हैं जब इलनेस क्रॉनिक है, सीवियर है, हैवी फैमिली लोडिंग इज देयर, बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स आर देयर. देन हम मेंटेनेंस थेरेपी में जाते हैं, विच कैन एक्सटेंड अप टू ईयर्स टू लाइफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ रिलैप्स. तो अगर हम ये 1, 2, 3 को सही से कवर करते हैं और हम ये जो साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी है, बार बार जो ब्रेन पे हमारे जो छपेड़ा आ रहा है, जो ट्रॉमा आ रहा है बिकॉज ऑफ इलनेस, वो कंट्रोल करते हैं, तो सस्टेन्ड रिकवरी में ब्रेन जाना शुरू हो जाता है. तो एज पर स्टडीज, प्रीमेच्योर डिसकंटिन्यूएशन रिमेन्स प्राइमरी कॉज ऑफ रिलैप्स. Patients who stop medications when feeling better often experience that symptoms return in months
within months, and it is more severe and becomes more resistant. बहुत कॉमन है, बहुत प्रैक्टिकली हमको मिलता है कि सर पहली बार में तो आपने बड़े अच्छे से ठीक कर दिया था, जतन कर दिया था, अब की बार आप दवा दे रहे हैं, दवा बढ़ा भी दी, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है ना। थिंग इज कि जितनी साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी हुई, ब्रेन पे उतना लोड पड़ा, ब्रेन को उतनी प्रॉब्लम होगी, तो आगे चल के उसमें इलाज में प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, ट्रीटमेंट डिफिकल्ट होता जाता है। So, by providing right medications, by controlling the illness, you are actually preventing long-term damage to your brain. आपकी जो दिमाग की नसें हैं वो प्रॉब्लम से बच रही हैं। अगर आपको डिप्रेशन अनट्रीटेड रहा तो हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम रिड्यूस हो सकता है, बार बार मैनिक एपिसोड होंगे तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो फंक्शनिंग है वो डाउन हो जाएगी, ग्रे मैटर लॉस हो सकता है। सो ऑल दीज आर एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड फाइंडिंग्स। डीयूपी यानी ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस, ये जो इलनेसेस को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे, आपका ब्रेन कमजोर हो रहा है, तो न्यूरल हेल्थ प्रमोट होती है, बीडीएनएफ और जो जो न्यूरॉन सर्वाइवल जो फैक्टर्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। तो जब भी आपको एक मेंटल इलनेस आई तो आप ऐसे समझो दिमाग में एक इलेक्ट्रोकेमिकल स्टॉर्म चल रहा है, एक आंधी तूफान चल रहा है जो सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस हो रहे हैं। सिस्टम को जिस पे भी ओवरलोड हम रखते हैं, अगर ज्यादा लोड रखेंगे तो वो सिस्टम अल्टीमेटली खराब होने लगता है। सो वी हैव टू स्टेबलाइज द सिस्टम एज सुन एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज नीडेड। Then suicide prevention, impulse control, aggression maintenance, all management, all these things are good when we are giving therapy. We are correcting the neurochemical imbalances. Medications also support therapy, also support rehabilitation. So combining medication with therapy, with rehabilitation efforts, with psychoeducation has the best outcome. So sleep quality is there, cardiovascular benefit is there, lifestyle adherence. So जो बाकी आपके फैक्टर्स हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। सो ऑल इन ऑल देयर इज फायदा ही फायदा। अब ओनली द थिंग इज कि अगर मेडिकेशन गलत इस्तेमाल होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, गलत चॉइस ऑफ मेडिकेशन है या ट्रीटमेंट सही नहीं हो पा रहा है, देन ओनली देन इट इज प्रॉब्लमेटिक। मेडिकेशन देना इज आफ्टर रिगरस टेस्टिंग, एफडीए एंड सीडीएस को गाइडलाइंस होती हैं, हमारी इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की गाइडलाइंस हैं, यूएस यूके हर कंट्री में मेजरली जो है गाइडलाइंस की एक सेट ऑफ इलनेसेस का एक यूजुअल सा इलाज क्या है, ताकि हम एक सेफ्टी प्रोफाइल बेहतर बना के रखें। इनफैक्ट मॉडर्न मेडिकेशंस आर वेरी सेफ एंड मेनी टाइम्स मच सेफर देन द सो कॉल्ड नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स। कि मैंने बोल दिया कि मेरी भस्म में या मेरे नेचुरोपैथी दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट इसका सबूत क्या है? दिस इज जस्ट माय पर्सनल क्लेम। दवा को लेके, साइकेट्रिक दवा को लेके लोग डरते इसलिए क्योंकि कुछ एविडेंस तो मौजूद है। जहां पर कोई फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज द थिंग, इसको लोग गलत तरीके से प्रमोट करते हैं कि नेचुरल, ये दवा खा लीजिए, नेचुरल है, ये हर्ब है, फलानी चीज करके ठीक हो जाएगा। என்ன பண்றது இந்த பிளாக் பேட்ச் தெரியாது இது வந்துச்சு வேண்டாமா ஒந்துல வேண்டாமா You can mute the person here. So that is one thing. The medications are tailored to individual need. Multiple classes of medication are there. SSRI, SNRI, mood stabilizer, anxiolytics are there. Weight neutral options are there. Weight gain होना जरूरी नहीं. Non-sedating choices are there. तो दिन भर सोना जरूरी नहीं है ठीक होने के लिए. Normal sleep होनी चाहिए. Normal appetite होनी चाहिए. Minimal side effects are there if you are able to titrate the things properly. So taking medication is ultimately showing strength. It demonstrates courage that you are accepting the fact and you are ready to take action. You are showing responsibility, and taking medication will enable fuller lifestyle. Thank you so much. We can now proceed to question answer sessions and any clarifications. Thank you so much, Dr. Siddiqui, for setting the context and explaining to us that how medications are so important and they're all evidence-based, and if you don't take the concept of relapse. And I liked how you brought about the 4 stages, the 1, 2, 3, 4. I think it was very well explained. Just to get the ball rolling, Dr. Siddiqui, many a times, all our families all have these misconceptions in our mind, and we like to have clarity on those aspects. The first one is, that psychiatric medicines are not safe.
and they are very addictive. So what would you like to comment on that, sir? I think this is a totally wrong perception. Psychiatric medications are as safe as your BP medications, as your thyroid medications, as your diabetes ka medication, as all the medications of non-communicable disease, NCDs. ना? Now safety के लिए दवा को बुरा कहना ठीक नहीं होगा. So suppose flying in a airplane is safe or unsafe also depends on the pilot. अगर आपने मेडिकेशन सही टाइट्रेट किया है, फर्स्ट थिंग इज डायग्नोसिस शुड बी करेक्ट. देन डायग्नोसिस का जो जो लेवल होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वो सही किया. डिसफंक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया, और ये सारी जो पिक्चर्स है सब बायो साइको सोशल, आपने सारा एंगल सेट कर लिया. सो इफ यू आर एबल टू पिन पॉइंट ओन इन ऑन अ proper diagnosis severity level, and then you provide medications. Then if you are aware of the side effect profile of the medication and side effect propensity of the person. किसी बंदे में वेट गेन टेंडेंसी ज्यादा होती है और किसी में नहीं होती है. ज्यादातर लोग आते हैं कि वेट लॉस हो रहा है, कुछ ऐसे भी आते हैं, सर हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, मैं क्या करूं, ऐसी दवा दीजिए कि वजन भी थोड़ा बढ़ जाए. इट विल डिपेंड पर्सन टू पर्सन. सो अगर आप ये चीज सही से टाइट्रेट कर रहे हैं, दैट कैलिब्रेशन, देन द मेडिकेशंस आर वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव. लॉन्ग टर्म लेने में यूजुअली कोई दिक्कत नहीं आती है. एज सेफ एज अदर. नॉन एडिक्टिव है, डेफिनेटली टोटली नॉन एडिक्टिव है, एक्सेप्ट फॉर अ सर्टेन ग्रुप. जो स्लीप वाली मेडिकेशन बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं, वो कुछ एडिक्टिव उसमें पोटेंशियल होता है ना. अगेन उसको कैसे देना है, इसके लिए आपका डॉक्टर ट्रेंड है, आप नहीं. एडिक्शन यूजुअली कब होता है प्रैक्टिकली, जब मैंने मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर दी 15 डेज 20 डेज के लिए, पेशेंट ने खाया, बहुत मजा आया, और अब वो मेरे पास 6 महीने बाद आ रहा है कि सब बिल्कुल मस्त थे, 6 महीना से मैं इलाज कर रहा था, अब क्या करें. तो हमने कहा अब तो मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि अब 6 महीने दवा खा ली, अब आपको वो एडिक्शन वाला एंगल भी लागू हो जाता है. तो सम मेडिकेशंस आर एडिक्टिव, मोस्ट आर नॉट. जिनमें भी एडिक्शन पोटेंशियल है, अगर आप एज पर गाइडलाइन, एज पर प्रॉपर प्रोटोकॉल देंगे, तो वो भी एडिक्शन कॉज नहीं करेंगे. Okay, so medications are not bad. The use of medication could be bad, leading to bad outcomes, leading to the certain myths that we are having. Thank you. Yeah. And you have to follow the right protocols. Yes. So the next question would be is, people have this misconceptions that it actually damages the brain more than, making it better, or it changes my personality once I start taking medication. Actually not, because as per the newer researches, the illnesses are neurotoxic. तो डिप्रेशन में मैंने बताया ना, बहुत सारा एविडेंस है हमारे पास कि एक्चुअली लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन होता है. ऑल दीज मेंटल इलनेसेस, मेंटल हेल्थ इलनेसेस आर टॉक्सिक. नाउ अगर इसको अगेन द थिंग इज कि अगर हमने सही से मेडिकेशन टाइट्रेट किया है, सो वी आर जस्ट गिविंग द राइट एनफ डोजेस, सो इट विल नॉट कॉज एनी डैमेज. जब आप मेडिकेशन को ओवरडोज कर देंगे, एक्सेसिव यूज कर देंगे, या प्रॉपर डायग्नोज नहीं हुआ, देन these are liable to they can cause damages. But again, the problem is not with medication, the problem is how it is being prescribed. तो सही से अगर है, ऐसा कुछ नहीं है. चेंज माई पर्सनैलिटी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर्सनैलिटी चेंज नहीं होता है. इनफैक्ट किसी दवा, ऐसे समटाइम्स इन SSRIs, जब हम लोग डिप्रेशन में लिखते हैं, तो कुछ पेशेंट ये बोलते हैं कि सर रोना तो बंद हो गया है, लेकिन हंसना भी बंद हो गया, थोड़ा सा न्यूट्रल सा फील करते हैं. तो दैट इज किसी में एक आध में ये हमको ओकेजनली मिलता है, बट ओवरऑल नो ब्रेन डैमेज. ब्रेन की रक्षा है, ये रक्षा का कवच है, ऐसे समझिए. अगर आप इसको नहीं करेंगे, इलनेस को अगर अनट्रीटेड छोड़ देंगे, तो ज्यादा प्रॉब्लम है. I like the word of kavach which you have used, sir, because I think taking medication itself is, whether it is thyroid or a diabetes itself, is a लोगों को लेना, it we feel it, एक दिन लिया दूसरा दिन भूल गए. And with psychiatric medicines, if you don't take the continuity, एक दिन भी भूल गए, तो फिर क्या हो जाता है? Definitely it is a problem. In fact, taking medications daily is a huge ask, very huge ask. तो अगर किसी से भी बोले कि आपको डेली दवा खाना है, इनफैक्ट एंटीबायोटिक दिन में 3 बार खाना है, तो अक्सर लोगों का आफ्टरनून का डोज छूट जाता है, सबका. Correct. तो टेकिंग
लॉन्ग टर्म मेडिकेशन इज एक्चुअली आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। मैंने आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में एक और चीज घुसेड़ दी मेन्यू में, ठीक है? अब मेन्यू में आपकी दवा भी है और जो आपको खानी है, नहीं खाएंगे तो समस्या है। सो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन इज एक्चुअली होल बंच ऑफ लेक्चर्स वी कैन से कि हाउ टू एड्रेस अडहेरेंस, की कैसे हम दवा को सुधारें, सिंप्लीफाई करते हैं हम रेजिम को, हम उसको टैग कर देते हैं कि भाई दवा खाना भूल गए तो ऐसा करो कि डाइनिंग टेबल पर रख लेना, और ये नाश्ते के साथ खाना है, ये डिनर के साथ ही खाना है। उसको टैग कर लें, अलार्म लगा लें, कैसे भी कर लें। सो तो टेकिंग रेगुलर मेडिकेशंस इज अ ह्यूज आस्क। देयर आर बाउंड टू बी एरर्स, हो जाता है, लेकिन कोशिश करा जाता है कि जितना मिनिमाइज्ड रहे उतना अच्छा रहेगा। ओके। और सर दूसरा चीज ये है कि people have this conception. I mean, I also get a lot of calls on these, from families, saying that, oh, you're giving such high dose medicine. Doesn't it lead to so much of, the person is sleeping continuously, 12 घंटा सो रहा है, 14 घंटा सो रहा है. So how are you giving such high dosage of medicine? मेरा छोटा डोसेज में ही वो इतना घंटा सो रहा है. And people, another question which I'd like to ask you along with this is that people have this misconception that, oh, once he's getting better, they start reducing the medicines on their own. They themselves become doctors. No, that should not be done actually. In fact, ज्यादा सो रहा है is a genuine concern. कुछ आप बहुत पुराने लोगों से बात करें तो उनका सोचना था कि जितना ज्यादा सो लेगा ब्रेन को रेस्ट मिल जाएगा और ठीक हो जाएगा। बट द लेटेस्ट कंसर्न इज नॉट दैट। जितना आप हमेशा से सोते आए हैं उतना ही सोना हमारा टारगेट है। आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर हो सकता है, बट अगर आप ज्यादा सो रहे हैं डेफिनेटली योर मेडिकेशंस नीड टू बी रिव्यूड। द थिंग इज मेडिकेशन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मेडिकेशन ऐसा नहीं है कि हमने 1 डिग्री डाला और 1 डिग्री इफेक्ट आया, ठीक है? तो 1 ग्राम मेडिकेशन दिया तो हमें आधा घंटे की नींद होगी, ऐसा कोई कैलकुलेशन होता तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता देते थे कि आपको 7 घंटा और 59 मिनट्स और 55 सेकंड सोना है। ऐसा नहीं हो सकता है। बॉडी सबकी डिफरेंट है, रिएक्शन सबका डिफरेंट है, सो वी हैव टू एंटिसिपेट कि दवाओं का इफेक्ट जो होता है यूजुअली पर डे के बजाय वो पर वीक के हिसाब से ज्यादा होता है। हमने आज से डोज बिल्डअप किया, उसका इफेक्ट आएगा कुछ हफ्ते बाद। तो जो आज सो रहा है प्रॉब्ली हो सकता है वो जो पहले की दवा थी उसका जो जो बायोरिदम से चेंजेस हुआ है उसका हुआ। सो इसको हम जल्दी से जल्दी कैटर कर लेते हैं, बट डेफिनेटली द टारगेट इज नॉट टू मेक द पर्सन स्लीप मोर। ज्यादा सोने से कोई फायदा नहीं है। ज्यादा सो रहा है का मतलब है कि हमें दवा को अभी रिवाइज करना है। टेपर डाउन खुद नहीं करना चाहिए, बिकॉज इनफैक्ट we recently had a lecture on Thursday musings on how to taper down. तो taper down में there is so many intricacies. सिर्फ आपको जो ठीक लग रहा है वो सिर्फ एक एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट को ठीक लग रहा है, लेकिन और भी ड्रग की हाफ लाइफ होती है, वो कितने दिनों में बॉडी से निकलती है। ड्रग का इंटरेक्शन पैटर्न होता है, वो कितने दिन से निकलता है। ड्रग की रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी होती है, जो ब्रेन में न्यूरो में रिसेप्टर्स हैं हमारे, 20% ले रही है कि 50% ले रही है। सो इस ड्रग लेवल पे इतना रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी है, ड्रग लेवल कम होता है रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी। इतना कॉम्प्लिकेटेड ये पिक्चर है कि अगर आप सिर्फ एक चीज पे करेंगे कि हम ठीक हैं और दवा घटानी शुरू कर दी, इट इज लाइक आप गैम्बलिंग कर रहे हैं अपने साथ की दांव सही पड़ गया तो ठीक है, गलत पड़ गया तो नुकसान उठाएंगे। as good as that. Okay. So it's basically the sleep and medications. Do they have a correlation then? Yes, definitely. Some medications are directly for improving sleep. So जिसमें नींद नहीं आ रही उसमें हम देते हैं। Some medications are there which help in which are either sleep neutral and some can also slightly decrease the sleepiness. Okay. तो ज्यादा सोने को भी घटाया जाता है। इनफैक्ट डिप्रेशन में अक्सर ज्यादा सोना या ज्यादा सुस्ती मिल जाती है। पर्सन विद डिप्रेशन में हैव इंक्रीज स्लीपीनेस। तो जब वो डिप्रेशन ठीक होता है तो वो स्लीपीनेस भी अपने आप उसमें ठीक हो जाती है। Okay. The other myth is, psychiatric medicines weakens my memory. I mean, this is something people tend to talk about. I think mixed response would be there. Again, some medications
आप ऐसे सोचो कि ब्रेन में बहुत सारा आग लगी हुई है, उसको हमें आग बुझाना है किसी तरीके से, हम्म ठीक है? सो हम ब्रेन को हल्का सा स्लो करना चाहेंगे उस समय में। हम्म नो, अगर ये जितनी देर आग लगी थी उतनी देर स्लो किया जाए तो ठीक है, बट अब उसको हमने लॉन्ग टर्म क्रॉनिक ओवरडोज में हम चल रहे हैं, तो वो ब्रेन को स्लो करना शुरू कर सकता है। अब मेडिकेशन का देर अगर ऐसा कुछ है, हमें महसूस होता है, तो डेफिनेटली वी टेपर डाउन मेडिकेशंस, वी चेंज ऑन टू अदर सॉर्ट ऑफ मेडिकेशंस। अगेन बात वही आती है कि अगर आपने दवाओं को फाइन टाइट्रेशन नहीं है, गलत इस्तेमाल है, तो दिस कैन लीड टू सर्टेन थिंग्स, बट अगेन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मेडिकेशन, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ यूज ऑफ correct use of medications. okay okay the normally people tend to is about the weight gain, that's a big chapter is of weight gain and other side effects, like some people have trembling hands and things like that. So what is your how would you advise our family? Yes, weight gain can be there with medications. Now, problem is when there is weight gain, when we start analyzing, तो दवा तो खा ही रहे थे, लेकिन साथ में मिठाई भी आधा किलो खा रहे हैं, साथ में रेस्ट भी पूरा कर रहे हैं, दिन में काम भी नहीं करना है, तो वेट गेन को अगेन भी क्रिटिकली एनालाइज। Weight gain is because of lifestyle factors, because of the diet, because of the exercise, because of the medication you are taking. Correct. Some medications can cause weight gain, some are weight neutral, some can even reduce weight. तो अगर वो एंड इन अ पर्सन देयर इज अ प्रोपेंसिटी की मैं जो मैं बात करता हूँ कि एक दवा देने से एक बंदे को वेट गेन होगा, दूसरे को नहीं होगा, Okay. ठीक है? तो वेट गेन में बहुत सारे फैक्टर आकर जुड़ रहे हैं, तो देन वी हैव टू अलोकेट द परसेंटेज कि कितना दवा से हो रहा है, कितना एक्सेसिव रेस्ट करने से हो रहा है, और कितना एक्सेसिव कैलोरीज लेने से हो रहा है। तो वेट गेन के लिए हमेशा अपनी कैलोरीज का हिसाब रखें, कैलोरी इन कैलोरी आउट। अगर ये बैलेंस आपका ठीक है, फिर भी आप सब कुछ करें। जैसे मान लीजिए माइल्ड उसमें थायराइड डिसफंक्शन है, टीएसएच बढ़ा हुआ है, उसको ट्रीट नहीं हुआ, मिस हो गया, तो वहां से वेट गेन आने लगता है। तो वेट गेन के सारे फैक्टर्स को हमको देखना है, उसमें एक फैक्टर दवा भी हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस आर नोन टू कॉज वेट गेन। ऐसे पेशेंट जिसमें हमें वेट गेन बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको हम शुरू से ही अवॉइड करके चलते हैं। वेट गेन अगर हो रहा है तो वी रिवाइज द ट्रीटमेंट, अगर जरूरी है तो दूसरा ग्रुप ऑफ मेडिकेशन फिर प्रिस्क्राइब कर। Okay. Okay. So is there the myth regarding that because I take psychiatric medicines, there'll be an overdependence on alcohol or other kind of drugs? Didn't get that. So is there a myth that if I'm taking psychiatric medicines, okay, there will be an overdependence for taking alcohol? I think these will be separate issues. Person who is taking alcohol is much part of it is choice. So if you're taking alcohol, if it is dependence pattern, then it is a illness in itself. Okay. So in general, we recommend avoiding alcohol, avoiding substances, because these substances, in fact, they cause the severe mental illnesses to relapse. Okay. ऐसी चीज जो बीमारी को ट्रिगर करने वाला है, और ऐसी चीज जो दवा का असर को कम कर सकता है, सो इट विल गिव यू डबल वैमी, वो डबल चोट करेगा आपके ऊपर। सो इट इज प्रेफरेबल टू अवॉइड सब्सटेंसेस। Okay. So I'll just take a few questions in the chat box now. Okay. I'm only taking the questions which are related to the topic. Okay. And I request everybody to put your questions in the chat box. I would earnestly request you all. So there is Sunita Garg who's asked about how my concern is how to very finely mitigate the metabolic side effects and the impact on the gut health with respect to psychiatric medicines. Sure. I think this is an important question, a very relevant question also. Metabolic side effects. So usually, if a person is prone to metabolic side effect profile, we try to avoid those medications. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah. Yeah. So we try to avoid the medications which are likely to cause metabolic side effects. So she has written antipsychotic. So the olanzapine group, the clozapine, all these medications sometimes they cause
metabolic profile problem. So in that, we choose different sort of medications which are having less of metabolic side effect. So to finally mitigate, the key thing would be to titrate the correct dose, lowest minimum dose, then choose the medication accordingly. Suppose we are talking about antipsychotics, so aripiprazole, ziprasidone, these medications are very metabolically neutral sort of thing and most commonly used. So cariprazine is the new medication. So some medications are having very less metabolic side effect profile. So if that is very important, then we shift to those medications. Again, for metabolic side effects, only the medication is not important. How your body is functioning. Suppose you're not exercising, you're just sedentary all through day. So then the metabolic profile will be garbad. And if you're taking biryani and rasgulla and everything, so again your metabolic profile will be off. So again, क्या आप खा रहे हैं, that is important. So for gut health, actually we can also recommend these leafy vegetables, the boiled veg, a very practical thing that has come, जो जो मैं खुद भी अपनाता हूँ, that is कि मार्केट में जितनी भी वेजिटेबल्स आ रही हैं, सारी वेजिटेबल्स हम ला रहे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा पीसेस किया, उसको बॉईल करा गया, उसका सूप बना या उसकी सब्जी बनी और खाने के एक पहले खा लिया, एक बॉल 2 बॉल. सो ये जो रफेजेस जा रहे हैं, रफेज जा रहा है ना फाइबर, ये फाइबर जब गट में जाता है, तो गट का जो अच्छा वाला बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, जो जो प्रोबायोटिक, तो वो इनफैक्ट वो जो प्रोबायोटिक्स हमको कहे जाते हैं ना कि ये वाला खा लो, ये प्रमोट होना, उससे उतना फायदा नहीं है. बिकॉज जब आप प्रोबायोटिक्स खाते हैं तो वो एक्चुअली पेट में हमारे बहुत सारा एसिड है, तो 99% तो वैसे ही साफ हो जाएगा. तो हमें वो सबस्ट्रेट डालना है पेट में, जो कि फाइबर हो गया, जो कि बॉइल्ड वेज में हो जाता है, कि वो जाने के बाद वो जो गुड बैक्टीरिया है उसको फीड करे. और इसी की जगह आपने प्रोसेस फूड खा लिया, आपने चॉकलेट खा ली, आपने मिठाई खा ली, आपने वो चीज़ें खा ली जो पैकेज्ड फूड जो बाहर से आते हैं. ठीक है, तो स्विगी जोमेटो से जो चीज़ें आप मंगा रहे हैं वो आपके गट प्रोफाइल को गड़बड़ कर रहा है. जो पैकेज्ड आप स्नैक्स खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहा है. तो फास्ट फूड के बजाय हमें स्लो फूड खाने हैं, फाइबरस फूड खाने हैं, नेचुरल फूड खाने हैं. ये आप खाएंगे तो आपका गट हेल्थ बेहतर होता है. देन एक्सरसाइज के लिए देर आर गाइडलाइंस कि एटलीस्ट 30 to 50 मिनट्स या 1 घंटा, एटलीस्ट 5 days a week. ठीक है, मोर देन ब्रिस्क पेस. जैसे हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, तो वॉकिंग में ऐसा नहीं कि कर रहे हैं तो मज़े से बात भी कर रहे हैं. वॉकिंग करें, एटलीस्ट इतना करें कि आपको बात करने में मुश्किल हो, सांस इतनी फूलने लगे, पसीना आने लगे. सो ये वाली एक्सरसाइज आधे घंटा 1 घंटा करना है, एटलीस्ट 5 days a week. तो मेटाबॉलिक प्रोफाइल के लिए हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज, हमारा रेस्ट और हमारी मेडिकेशन, मेडिकेशन वो चूज करेंगे जहाँ मेटाबॉलिक इश्यूज कम आएंगे. तो ये पूरा प्रोटोकॉल जब लेके चलेंगे तो आपका आउटकम डेफिनेटली बेहतर होना चाहिए. I think about the gut is, I think it's there even for all of us. Have All to, yeah, it's everyone, not for only for our loved ones, but I think all of us have to follow that. actually all the lifestyle medications is for everyone, Correct. and not only for this illness, for a person without illness, for a person with heart illness, for a person with brain illness. Exactly. Yeah. So the next question is, I don't know whether you'd like to take it. In case you would, is lithium SR 800 an Olimit 5 mg taking for a long time addictive? Absolutely not. Okay. No chances of addiction. Okay. What are the effects of not following the advice of doctors, like taking more or less, or stopping or restarting suddenly? I think you've spoken about it, but if you'd like to add Yeah, on. the basic thing will be that how you are viewing the picture. हम सिर्फ सही और इलनेस, मतलब सिम्टम सही है, सिम्टम गलत हो को नहीं देखने हैं. आप इसमें क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? आप कंटिन्यूशन फेज मिस कर रहे हैं, आप मेंटेनेंस फेज को मिस कर रहे हैं, आप जो परसेंटेज ऑफ रिलैप्स है वो मिस कर रहे हैं. तो बेटर टू फॉलो द एडवाइस, बिकॉज अगर नहीं करते हैं तो इलनेसेस गेट क्रॉनिक ओवर टाइम, दे गेट रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट मुश्किल होता जाता है. और ऐसे भी देखो ना, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ रही है तो बॉडी में नेचुरली थोड़ा थोड़ा डिग्रेडेशन आता है. तो हमारा बेसलाइन अगर कमज़ोर वैसे भी होना है एज के साथ, प्लस हमने उसमें एडेड डैमेज है जो बार बार हो रहा है, उसके लिए दिक्कत हो रहा है, तो बेटर टू फॉलो द एडवाइस Yeah. एंड डू द मेडिकेशन. Okay.
So the next question is weaning carbamazine, zopine, and Lamitor. Sleep disturbed, sleep groin pain. Please guide. I think we'll have to properly evaluate the person. Before you, okay. Before you, I think probably they are removing carbamazepine and introducing lamotrigine. So sleep disturb probably थोड़ा सा शायद relapse का chance हो सकता है. Severe groin pain is not usually linked with these medication. So I think a proper workup for groin pain क्यों हो रहा है ये आपको अलग से देखना पड़ेगा most likely. Yeah. So the next question by Vimla Govinda. Okay. I think you spoke about this also, but Yeah. Slight blunting of emotions is sometime there, but again the thing is कि हमको देखना होता है ट्रेड ऑफ मीन्स कि हम क्या चाहते हैं, हम फ्लेयर्ड अप साइकोटिक सिम्टम चाहते हैं, या हम एक्सेसिव सुसाइडल आइडिएशन चाहते हैं, या हम ये स्लाइट स्लोइंग डाउन चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमको ट्रेड ऑफ करने की जरूरत होती है. सो अगर जैसे हमको लग रहा है कि स्लोइंग डाउन है तो एसएसआरआई के बजाय हम नॉन एसएसआरआई जो एंटी डिप्रेसेंट है वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं. और राइट बैलेंस ही और शी वांट्स टू आस्क, राइट बैलेंस इज अगेन frequent contact and titration of the medications and correct choice of medications. Okay. Yeah, And she said, how does Genoma, one, pardon me? right medicine for any particular patient? There is no right medication for a particular patient. Every patient is an individual. Different, yeah. Individualized treatment has to be there. Yeah, I think you spoke about it, that it has to be patient-centric and individualized. Absolutely. Absolutely. Yeah. So the next question by Dimple Sondi is, how much role does genetics have on mental health? I think a very huge role. I said in the presentation, Yes. even before you are born, some of the things are written. Okay. So आपकी फैमिली में कितना that set of illnesses there या उससे related illnesses are there. So not only for mental illnesses, for cardiac, for other sort of illnesses. So फैमिली हिस्ट्री से क्या होता है कि हमारी जीन वो एनकोडेड है, जीन से प्रोटीन्स बन रही हैं. नाउ फैमिली वो हमारे अंदर जेनेटिक नाइडस बोले कि हमारे अंदर वो एक समस्या मौजूद थी, बट उस पर बहुत ट्रिगर हमने प्रेशर पॉइंट नहीं पड़ा और हमारी लाइफ साधारण यूजुअल सी निकलती चली गई और कोई प्रॉब्लम नहीं आई. तो हो सकता है डिस्पाइट द जेनेटिक रिस्क वो इलनेस ट्रिगर नहीं हो. हमारे अंदर जेनेटिक रिस्क मौजूद था, प्लस उस पे एक ट्रिगरिंग फैक्टर आ गया और वहां से वो फ्लेयर अप हो गई. सो जेनेटिक जब हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेते हैं तो ज्यादातर लोगों में इनफैक्ट शायद ही कोई होंगे जिनमें हमें जेनेटिक मेंटल इलनेस की हिस्ट्री नहीं मिलती. अगर इलनेस की हिस्ट्री नहीं मिलती तो आप देखोगे उनमें जब आप कायदे से पूछोगे तो थोड़ी सी इरिटेशन ज्यादा है कि उनके जो चाचा थे या दादा थे बहुत गुस्सैल मिजाज के माने जाते थे, गर्म मिजाज के थे वो लड़ाई झगड़ा बहुत करने लगते थे, और एक थे उनको नींद की कमी आती थी, दूसरा तो ये इस तरह की चीजें भी हमको दिखती हैं. सो वेरी ह्यूज रोल बट अ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर. Okay. So what are the tests to detect metabolic side effects, and at what frequencies this should be done? मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट के लिए अगेन द मेटाबॉलिक प्रोफाइल जो आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, हाँ. उसमें लिपिड प्रोफाइल हो गया, HbA1c हो गया, ऑल दीज मेटाबॉलिक पैरामीटर्स, आपका वेट हो गया, वजन आप चेक कर रहे हैं, वेस्ट सरकमफ्रेंस चेक कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, तो इसका बहुत ही क्लियर कट इंडिकेटर्स हैं. सो ये मेटाबॉलिक प्रोफाइल के लिए हम लोग करते रहना चाहिए. Do this half yearly, yearly? What is the kind of frequency? डिपेंडिंग ऑन द नीड. अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो साल में एक बार तो करा ही लेते हैं. अगर दवा चल रही है, अगर चेंजेस आ रहे हैं तो एज फ्रीक्वेंटली एज नीडेड हम लोग उसको कराते हैं. Okay. I think this is also true for any person who's done with diabetes. Exactly. Yes, everything goes for otherwise also. Yeah. This is again withdrawal effects of carbamazepine and introduction of Lamitor. Sleep is getting disturbed. Qutipin and clonazepam. I think please remember withdrawal effects. There is a concept कि पहले तो withdrawal हम कर क्यों रहे हैं? If at all needed तभी करना चाहिए. Suppose इसमें हमको कोई प्रेसिंग नीड है जिसके कारण हम चेंज कर रहे हैं, देन इट इज़ वेल एंड गुड. अदरवाइज अगर पेशेंट कामोवास्मी से सेटल्ड है
तो हम उसको चलने भी दे सकते हैं, अननेसेसरी चेंज नहीं करना है। चेंज करने में हमेशा रिस्क रहता है चांस का। सो दो तरीके, टेपरिंग बहुत तरीके का होता है कि सपोज एक मेडिकेशन की डोज है और दूसरे को हमने फर्स्ट मेडिकेशन को सेम रखा और दूसरे को एड ऑन करना शुरू कर दिया। तो जब दूसरा मेडिकेशन प्रॉपर डोज में आ गया तब हमने पहले को डाउन किया। तो एक तो ये टेपरिंग होता है। दूसरा टेपरिंग ये कि हमने फर्स्ट मेडिकेशन को कम करना शुरू किया और साथ में ही दूसरे को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसको क्रॉस टेपरिंग बोलते हैं। सो ये बहुत सारे फाइन इंट्रिकेसीज हैं, तो ये केस टू केस वेरी करेगा। इनफैक्ट लेमोट्रिजीन का जो बिल्डअप है वो बहुत स्लो करा जाता है, यूजुअली ओके 15-20 डेज में करा जाता है। लेमोट्रिजीन का ऑनसेट ऑफ एक्शन जो यहाँ हमको दिख रहा है ना, दो दो इस तरह के केसेस आपने जो बोले हैं, लेमोट्रिजीन को बनाने में यानी उसका जो डोज लेवल लाने में समय काफी लगता है। ओके सो प्रॉब्ली हो सकता है कि कार्बामेज़पिन जल्दी विड्रॉ हो रही हो, लेमोट्रिजीन उसको रिप्लेस करने लायक नहीं आ रही हो। सो लेमोट्रिजीन का रिप्लेसमेंट होगा, डोज बिल्डअप होगी, फिर उसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस हमारे ब्रेन में चेंजेस होंगे, तो कुछ हफ्ते और जोड़ लीजिए। तो जब इन चीज़ों को आप इस कैलकुलेशन में लेंगे तो हो सकता है कि आपको कार्बामेज़पिन और स्लोली हटानी हो। And I think the doctor is the right person हाँ to हाँ, take this पर्सन टू call. पर्सन, हाँ, दिस कैन नॉट बी Yeah, एड्रेस्ड इन अ in a सिंपल forum of this kind. I agree यस। with you completely. I think this on metabolic, you have already spoken a lot, sir. Yeah. Uh, यस uh, this is a question by Bajrang ji. Taking medicine for 40 years caused dementia, haloperidol, risperidone for schizophrenia. Okay, so basically, usually what in such scenarios we try to uh, use one antipsychotic instead of two. So अगर एक पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इस जो जो ओल्डर ग्रुप था, जो फर्स्ट जनरेशन, जैसे हेलोपेरिडोल ग्रुप को हटाकर हम लोग जो न्यूअर जनरेशन ग्रुप है उसमें कॉग्निटिव साइड इफेक्ट कम माने जाते हैं। जो जो एंटीसाइकोटिक्स जो पुराने वाले थे उसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, और जो लेटर ऑन जैसे रेस्पेरिडोल सेकंड जनरेशन, उसमें भी एरिपिप्राजोल, कैरिप्राजीन, लोनांसरीन, बहुत सारे जो नए मेडिकेशंस हैं उनकी खासियत ये मानी गई है कि उसमें कॉग्निटिव साइड इफेक्ट्स कम है ना। कॉजिंग डिमेंशिया, दैट इज, ये कहना मुश्किल है बिकॉज जो दवा नहीं खाता उसको भी डिमेंशिया हो जाता है। Correct. ठीक है, सो अब जो डिमेंशिया हो रहा है या डिमेंशिया लाइक जो सिम्टम्स हैं उसमें दवा का कितना कंट्रीब्यूशन है ये देखना होगा। प्लस नेचुरल डिमेंशिया की तरफ जा रहा है, प्लस स्किज़ोफ्रेनिया का लॉन्ग टर्म आउटकम में ही ये सिम्टम्स है। डिमेंशिया लाइक सिम्टम्स जब लॉन्ग टर्म रन हो जाता है, तो अगर स्किज़ोफ्रेनिया अनट्रीटेड है तो बहुत लोगों को 40 साल के बजाय 30 साल पे ही डिमेंशिया के सिम्टम आ जाएंगे, बिकॉज दैट इलनेस इज ऑल्सो कॉजिंग सम डैमेज टू न्यूरॉन्स। सो Neurons. अगेन सारी चीजें हैं इसमें इंक्लूडेड। So is it true that the gut health has an effect on the mental health? यस एब्सोल्युटली। Okay. Okay. सो So, इफ यू, सो अगेन इसको फिर ऐसे देखिए कि आप जब आपकी पूरी ब्रेन और गट और अलग अलग चीज नहीं है ना, कोई सारी चीज हमने स्पेशलिटीज बांट ली है। सपोज एमबीबीएस के बाद मैंने ब्रेन के लिए स्पेशलाइज कर लिया, किसी ने गैस्ट्रो में कर लिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हमारी बॉडी बढ़ गई चारों में। हमने तो उसको पढ़ने के लिए कई सारी चीजें बना ली। हाँ. मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ का बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर आपकी, इनफैक्ट दोनों चीज़ें साथ में ठीक होंगी और दोनों चीज़ें साथ में गड़बड़ होंगी। तो अगर आपने गट हेल्थ सुधार ली तो ब्रेन हेल्थ डेफिनेटली बेहतर होगी। आपके अगर पेट ठीक है तो आपकी अलर्टनेस लेवल, एफिशिएंसी, रेजिलियंस ये थोड़ा बेहतर होगा। अगर आपका पेट गड़बड़ रहता है तो आप हमेशा परेशान दिखोगे। बहुत से पेशेंट है कि वो गैस्ट्रिक के बहुत पुराने मरीज हैं, गैस इधर भाग हाँ. रही उधर भाग रही, वो परेशान रहते हैं हमेशा। हाँ. तो बिल्कुल डेफिनेटली गट हेल्थ इज very important part of mental health. Mental health will also affect gut health. Okay. 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 That was an interesting learning for me today. Okay. Yeah. Um, this is Suresh Ji asking this question. I'm a caregiver to my loved one. Can you elaborate on medical holiday, medication trials, and medication giving during patient's admission in rehab periods? Okay, in psychiatry we don't have much concept of medical holidays. Hmm. सो अनलेस अनटिल कोई लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट आ रहा है, इनफैक्ट सर्टेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में, पार्किंसंस में हम लोग बीच बीच में बहुत वर्सन हो रहा है तो ड्रग हॉलीडेज की बात करते हैं। बट एज सच इन साइकियाट्री वी डोंट हैव मच एविडेंस ऑफ मेडिकल हॉलीडे। सो मेडिकल हॉलीडे यूजुअली एज पर माई नॉलेज कहीं बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इनफैक्ट मेडिकल अननेसेसरी दवा होल्ड करने से रिलैप्स अगर हो रहा है तो इट विल बी डेट्रीमेंटल।
सो इनफैक्ट दवा को लोअर डोज में लाके, लोएस्ट डोज में लाके, जितना कम से कम है, लीस्ट रिक्वायर्ड अमाउंट अगर आप कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो वो कंटिन्यू करना इज द सेफेस्ट बेट. Okay. Then medication trials, probably he's asking for trial of what, The मतलब medicines नया में. नया medication हम market में ला रहे हैं, that trial, or on a person we are trying different medications? On a person, we are trying different On a medicines. person, तो हमें पर्सन की जो प्रोफाइल है वो स्टडी करनी होती है. पर्सन इज ओवरवेट और अंडरवेट, ही इज स्लीपी और ही इज Not. वेरी हाइपर अराउज्ड, हाँ, ही इज वेरी एंग्री पर्सन और ही इज अ काम सॉर्ट ऑफ पर्सन, correct. और व्हाट आर हिज अदर हैबिट्स. तो उसका जो जो जनरल बायोलॉजिकल रिदम है पर्सन का, वो हम देखते हैं. देन टेंडेंसी टू रिएक्ट टू मेडिकेशंस कैसा है, उसके हिसाब से देखते हैं, और उसके हिसाब से मेडिकेशन ट्राई करते हैं. मतलब कि वेट हमें बढ़ाना है कि कम की तरफ रखना है कि ज़्यादा रखना है, स्लीप कम करना है कि, या एक्टिवेटिंग मेडिकेशन देना है कि थोड़ी कामिंग मेडिकेशन देना है. सो इस तरीके से हम मेडिकेशन ट्रायल यूजुअली नहीं करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है. मे बी एक और दो, यूजुअली अगर आप सही से स्टडी कर ले रहे हो, जो फर्स्ट वर्कअप है अगर अच्छा हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, तो बाद में ट्रायल की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है. समटाइम्स वी नीड कि हमने दवा दिया, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम चेंज कर सकते हैं. Okay. Yeah, I mean, that's Medications, pardon yeah, me? and medications during Rehab. admission in rehab period. Rehab, probably, I think acute phase he is asking. Yes. Usually in acute phase medications की डोज बढ़ाने होते हैं और ज़्यादा दवा देनी होती है, कि हमारा वो सिचुएशन एज सुन एज पॉसिबल कंट्रोल में आ जाए विदाउट कॉजिंग एक्सेसिव साइड इफेक्ट टू मेडिकेशन. तो जितनी जल्दी कंट्रोल कर लें अच्छा रहता है. Yeah. The next question by Dimple is measures, test measures, correlation of number of relapses with the level of medicines to be given. I think this, you answered this question of the calculation, the way the medicines are given. I think that's what you had answered, right, sir? Yeah. So regarding injectables, are they more effective than oral medications, or? No, no, no. They are equally effective. इंजेक्टेबल स्कोर व्हेन डिपो मेडिकेशन की हम यूजुअली बात करते हैं. हाँ जी. एक्यूट फेज में है कि इंजेक्शन हमने दिया, क्योंकि ओरल आपने खाया, फिर वो अब्जॉर्ब होगा, फिर वो ब्लड में जाएगा. तो अक्यूट फेज में इंजेक्शन का एडवांटेज ये है कि हमने डायरेक्ट उसको मसल में दिया और वो जल्दी से ब्लड स्ट्रीम में गया और ब्रेन में गया, और थोड़ा शांति हमको जल्दी मिल गई. खाने में थोड़ा देर मिलता है. तो एक तो ये है, फास्टर ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन है, एफिकेसी टोटल बराबर रहती है. देन देयर इज अ डिपो इंजेक्शन की मंथली इंजेक्शन हम दे रहे हैं, वो भी इक्वली एफिकेशियस टू ओरल है. अगर आप ओरल मेडिकेशन डेली ले रहे हैं, दैट इज एज गुड एज इंजेक्टेबल्स. अगर आपकी डोज अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, डोज सही कैलकुलेट करिए, ओरल इज एज गुड, इंजेक्शन इज एज गुड. तो यूजुअली लोग इंजेक्शन का पेन अवॉइड करने के लिए दवा टैबलेट प्रेफर करते हैं. लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट हैं कि जो दवा खा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, छोड़ रहे हैं. जब उनको हमने इंजेक्टेबल पे डाला, दूसरे तीसरे महीने से एकदम ड्रास्टिक चेंज आता है, बिकॉज हमें एक स्टेबल मेडिकेशन लेवल मिल जाता है. सो एफिकेसी बराबर है, प्रॉब्लम इज कंप्लायंस. ओरल आपने खाया, मिस किया, मुंह में रखा, फेंक दिया, और फिर वो दवा हम बढ़ा रहे हैं, दवा तो फायदा नहीं कर रही है. सो इंजेक्शन पे जैसे ही लिया, वो फट से 1 महीने 2 महीने में सुधार दिखता है. सो दैट इज द थिंग. Yeah. The next question is, the family members also start suffering from depression, anxiety, and long-term illness. Is there a precautionary medicine for them too? I think very important question. Caregiver burnout, स्पेशली डिमेंशिया पेशेंट में, या जो लॉन्ग टर्म ऐसी इलनेसेस जिसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. So a person is remaining disturbed despite all the best efforts. So definitely caregiver burnout, caregiver issues are there. So उसमें instead of medications, what we do is group therapy हम लोग करते हैं. जो जो CBT सेशंस हैं, या जो थेरेपी सेशंस है, कॉग्निटिव थेरेपी, उसको करते हैं. देन रिस्पाइट थोड़ा सा लेना चाहिए. सपोज अब आपकी ड्यूटी लगी है, नर्स की ड्यूटी कितनी देर होती है? 6 घंटा, 8 घंटा, उसके बाद चेंज हो जाती है. करेक्ट, करेक्ट. अगर आप ऐसे पेशेंट के साथ रह रहे हैं, तो 24 घंटा आपकी ड्यूटी है, बर्नआउट तो हो ही जाएगा. करेक्ट. तो उस ड्यूटी को आपको स्प्लिट करना होगा, आपके साथ किसी दूसरे हायर्ड प्रोफेशनल के साथ, दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ. तो आप ये ड्यूटी रोटेट करें, दैट इज वन थिंग. अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा, अपनी वेलबींग, मेंटल वेलबींग को केटर करना होगा. तो ये इसमें, अब इसमें ये है कि एडेड रिसोर्सेस लग रहा है. अब एक ही
केयर गिवर है और एक ही पर्सन विद इलनेस है, तो उसमें तो दिक्कत आनी आनी। तो अगेन वहाँ पर एनजीओज हेल्प कर सकती है, वहाँ पर सोसाइटी हेल्प कर सकती है। तो हमें अपना भी ध्यान, वो आपने सुना होगा ना, एयरक्राफ्ट में बोलता है कि ऑक्सीजन मास्क कहाँ लगाना है पहले, सबसे पहले आपने। जब आप ठीक रहेंगे एग्जैक्टली तब तो आप पेशेंट की केयर करेंगे। तो अपनी केयर भी करिए, पेशेंट की केयर भी करिए, कंप्लीट पैकेज की तरह देखिए इसको, सिर्फ मरीज का इलाज करते करते। इनफैक्ट yesterday only a person came who was quite hale and hearty, और उसको एंजाइटी डिप्रेशन सिम्टम थे। अब उसके फादर का इलनेस, फादर मदर की केयर कर रहे हैं वो, तो वो 4 बार मदर की दवा, 5 बार फादर की दवा, कह रहे हैं सर ये करते करते ही हैज गॉन इनटू सॉर्ट ऑफ रिएक्शनरी डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। सो yeah. ध्यान रखना होगा अपने आप को। Self care for the family care is most important. Absolutely. Absolutely. Yeah. So, Vimla has asked this question on genomic studies. टू रीच अ करेक्ट डायग्नोसिस, आई थिंक अभी भी जो करेक्ट डायग्नोसिस सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं वो दिस इज सिम्टम बेस्ड, कि हमारा क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स क्या है और उसको कैसे हमको कितना डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है, कितना है, उस पर बेस्ड है। कुछ स्टडीज, कुछ एड ऑन ये आ रहा है कि किस पेशेंट में दवा ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, किस किस में हमको दवा कम कर सकते हैं। कुछ जेनेटिक टेस्टिंग आ रहा है, बट अभी जीनोमिक स्टडीज फॉर करेक्ट डायग्नोसिस इज नॉट देयर। Is not there. So, uh, this was our last question in the chat box also, sir. Yeah. Is there any, thank you for answering all of them so patiently, sir. Any last few words you would like to tell our family members, sir? Regarding medication, I'd like to tell treatment of mental illnesses is possible. Okay. These are brain-based illnesses. They are not imaginary or functional illnesses. ये प्रॉपर मेडिकल इलनेस है। ब्रेन जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वहां पर इसमें डैमेज हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट देर इज चेंज इन बिहेवियर बदल रहा है, दैट वी आर इंटरप्रेटिंग एज इलनेसेस। ओके, सो हमें ब्रेन का इलाज करना है। ब्रेन इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। उसका इलाज ऐसे नहीं हो सकता कि ठीक है और खराब है करके। सो विद आपको अपने जो केयर गिवर और डॉक्टर और पेशेंट, ये जो ट्रायंगल है, इसको आपको बैलेंस रखना है, फ्रीक्वेंट कांटेक्ट में रहना है। medications are not for sleep. They will not damage your liver, kidney and lungs if used properly. So medications are safe as bp sugar thyroid का medication. टेक देम एज लॉन्ग एज नीडेड। अर्ली छोड़ने से कोई बहुत फायदा नहीं। अगर कोई दवा से प्रॉब्लम हो रही है, डेफिनेटली इफ योर डॉक्टर इज अ रीजनेबल पर्सन, ही और शी विल रिड्यूस द मेडिकेशन और ऑल्टर। सो डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। मेडिकेशन जब लॉन्ग टर्म चलता है तो कॉन्सेप्ट वी फॉलो इज कि मिनिमल इफेक्टिव डोज, ऐसी छोटी डोज जिसमें कि हमारा काम चलता रहे और बाकी डिस्टर्बेंसेस नहीं हो। सो हमें सारी चीज़ को अलाइन करना है, ठीक है। और सब चीज़ का ब्लेम दवा पे नहीं डालना है कि मेरा वजन भी बढ़ गया, मेरा ये भी हो गया, मेरा वो भी हो गया, सब चीज़ नहीं। आप अपना लाइफस्टाइल भी देखिए, मेडिकेशन भी देखिए, सब चीज़ को ऑब्जेक्टिवली मेजर करिए। अगर दवा में दिक्कत है तो डेफिनेटली दवा चेंज करिए। यूजुअली हमको लाइफस्टाइल में दिक्कत दिखता है कि हम अपना एफर्ट थोड़ा सा कम डालते हैं, बिकॉज ऑफ इलनेसेस ऑल्सो, कि अब हमारा मोटिवेशन उतना नहीं है, हमारा थॉट प्रोसेस उतना एक्टिव नहीं चल रहा है। सो ऑल इन ऑल, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेसेस इज अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। एज अ डॉक्टर आई विल से कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब स्मॉल परसेंटेज ऐसे रहेंगे जिसमें लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है, तो अगेन दे आर प्रोटोकॉल्स टू फॉलो दैट। थैंक यू। Absolutely. Very well, sir. Thank you very much. I'd like to call upon Ritu Sharma to give a vote of thanks, sir. Ritu, there you are. Okay. नहीं सर, मैं इतना इम्प्रेस हो गई हूँ आपकी हर चीज से कि मैंने बोला मैं ही वोट ऑफ थैंक्स दूंगी। मैं फेसमी से दिल्ली से हूँ सर, रितु शर्मा। एंड सर, आपने इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और इतना अच्छा आपने बोला है कि बस अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखिएगा और बस अल्लाह भगवान सब आपकी को खूब ब्लेसिंग्स दे। सो थैंकफुल टू यू एंड शुक्रिया। और आते रहिएगा, मिलते रहिएगा। ऑल एवरीथिंग आई हैव नोटेड डाउन इन माय डायरी। जो आपने बोला, किसी ने पहले नहीं बताया था कि इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से शुरू होता है गट हेल्थ से और फिर दिमाग से आपका फिजिकल हेल्थ। तो ये सब एम्फेसिस हमको पहले हमारे माइंड में आया ही नहीं था ये सब। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन दिस फोरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू।
My pleasure, ma'am. My Absolutely. pleasure. My Thank you pleasure. so much, Doctor, for your wonderful explanation and sharing and patiently answering all our questions, sir. Yeah. I would like now to share the pledge of Face Me. I'll read it out. We take this pledge to work towards the vision and mission of Face Me India, to advocate for the rights of our loved ones and care for the wellness of families with respect, trust, hope, and love. Thank you, everyone. Okay. Thank you very much. Thank you, Dr. Thank you. Siddiqui. Thank you, ma'am. everyone, for Thank you, joining everyone. us. Thank you.